everyone, Sanskriti here. Welcome back to my channel. So in today's video we are just going to have a general talk about LPU. I know I'm very late regarding this video, but it's okay. So today in this video we are just going to have a little discussion. So I have a bunch of questions, I guess 7 to 8 questions for this video, and I'm just going to share my own experience regarding LPU. So firstly, congratulations to all those who have been part of this huge and big family, guys. And basically I'm just going to have this video today as because I just got notification pop up on my screen which was saying that the second phase examination has been started for LPU. So guys, if your first phase has not been very well, you should go and have the try for second phase, as because it might be you can score more good marks in the second phase as rather than the first phase. So this whole semester is going to be online, and you just need to sit at on your home at one single place and need to study. That's all. So it's been 5 to 6 months and I am missing my college really much. Like everyone says ki haan, like I'm gonna use my language, okay? So it will be more comfortable for me to speak, okay? So सब कहते हैं कि कॉलेज नहीं जाना और मस्ती नहीं हो पाती ऐसा वैसा, बट लिटरली बात ये है कि सब बोलते हैं बट उतना ही ज़्यादा मिस करते हैं. So literally I'm missing my college life more. So without wasting, let's just get started with the question for the discussion. So I'm not gonna tell you about LPU, whether LPU is good for girls or boys, everything. I'm just gonna have those questions which is related to me, and I can share my own experience regarding that. So the first question is daily schedule or the routine I have in LPU. So it's been 2 years now, and this year is my final year, and like the time has passed very quickly. Like this bit and the first year has been completed. So my experience was like I was a girl who has studied his class for like from nursery to class 12 in the same school at the same place. Okay, just the branch has been changed and the location has been changed. So मुझे ये आदत थी कि मुझे बाहर मतलब था एक क्रेज़ अंदर कि हाँ मुझे भी बाहर जाना है और इन्जॉय करना है, बट उसके अलावा ये भी फेयर था कि यहाँ पे मैं मम्मी पापा के साथ हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे ला के देते हैं, लाइक वो मेरी हेल्प करते हैं, मुझे करवाते हैं, मुझे कुछ भी चाहिए होता है या कोई भी डिसीजन लेना होता है उसमें वो मेरी हेल्प करते हैं. लेकिन जब वहाँ जाऊँगी मैं तो कैसा डिसीजन लूँगी, कौन मेरी हेल्प करेगा, ये कभी नहीं सोचा था. सो फाइनली लाइक मैंने 2 कॉलेजेस के लिए भरा था, एक LPU और एक DU. सो व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड इन LPU, DU का ऑप्शन डायरेक्टली क्रॉस हो गया था. सो आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड एज बिकॉज पापा आए हुए हैं. सो मम्मा हैज़ जस्ट शट द डोर ताकि वॉइस ना हो जाता. तो हम LPU गए, वहाँ का सब कुछ काफ़ी अच्छा था, लाइक द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग इज सो गुड. हाँ, अभी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं वहाँ पे, क्योंकि जब मैं गई थी तो वहाँ पे बहुत सारा मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा था, बट अभी चल रहा था रिसेंटली, एंड आई गेस कि अब तक हो गया होगा. सो जब मैं गई थी वहाँ पे, सो मेरे को पता नहीं था कि हाउ शुड आई एक्सप्रेस एवरीथिंग, क्योंकि मम्मी पापा शायद 2 दिन मेरे साथ रहते या 3 दिन मैक्स टू मैक्स रहते, उससे ज़्यादा नहीं रहते. तो उन्होंने सब कुछ सेटल अप करवाया मेरा, हमने सब कुछ सेट किया कि हमें कहाँ पे क्या रखना है. देन हम बस बाहर थोड़ा सा घूमे, एज बिकॉज आई हैव माई कज़न ब्रदर ओवर देयर, माई एल्डर ब्रदर फ्रॉम माई मैटरनल साइड. तो वो था वहाँ पे, तो आई वॉज लाइक कि हाँ मैं सब कुछ देखूँगा, ध्यान रखूँगा इसका. और मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा कॉलेज, इतने सारे थॉट्स कि क्या करूँगी, कैसे होगा. आई वॉज टोटली ब्लैंक. मैं एक दिन तो बहुत रोई थी कि मुझे नहीं छोड़ के जाओ मम्मा पापा एंड एवरीथिंग, बट दैट वाज ओके. एक फेज था वो. देन आई वाज लाइक माई रूम वाज 4 सीटर राइट, इंक्लूडिंग मी. सो आई हैव वन फ्रॉम यूपी ओनली, लाइक माई ओन स्टेट, एंड 2 आर फ्रॉम साउथ. ओके, सो मुझे साउथ वालों के साथ रहने का ऐसा एक्सपीरियंस तो था नहीं, एज बिकॉज उनका कुछ अलग होता है जो मुझे अभी तक नहीं समझ में आया. लाइक मैं कुछ गलत नहीं बोल रही, बट ये मेरी थिंकिंग है कि वो अपने जोन में रहते हैं, एज कि हम नॉर्थ और साउथ अलग अलग जैसा बिहेव करते हैं. दैट्स वाई. तो पहला सेमेस्टर तो वॉज लाइक कि अगर 9 बजे का क्लास है, सो आई हैव टू वोक अप एट 7:30 और 7 in the morning, एज बिकॉज मुझे नहीं लेट होना था, क्योंकि 4 लोग रहते थे मुझे लेके, तो सबका अपना उठने का टाइम, सबको रेडी होना एंड एवरीथिंग. सो दैट्स वाई कि मैं लेट ना हूँ. सो आई वोक अप एट 7:30 in the morning. मैंने ब्रश किया एंड एवरीथिंग.
देन मैं फटाफट रेडी होंगी 9 बजे की क्लास की। हाँ, मुझे इतना याद है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आई गेस 9 बजे की सिर्फ एक क्लास होती थी मेरी, बाकी 10 और 11 बजे की होती थी। तो ये मेरे प्लस पॉइंट था कि मैं आराम से सेटल हो जाऊँगी। तो फटाफट से लाइक अभी सोच लो 9 to 5, अभी तो मेरा 9 to 5 ही सीन चल रहा है। तो रेडी होना होता था, फिर मैं भागती थी कॉलेज। और जहाँ से मेरा हॉस्टल है ना, वहाँ से अगर आप आराम से जाओ 15-20 मिनट पहले निकलोगे तो आराम से पहुँच जाओगे, और रश करके जाओगे तो मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लग जाएंगे। और हॉस्टल में ही आपको 2-3 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि टर्न स्टाइल है, एंट्री करना नहीं है तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि क्राउड भी हो जाता है। तो कॉलेज गई, स्कूल गई अपने, उसमें क्लासेस की, उसके बाद 5 बजे क्लास छूटा, या जब भी छूटता था उसमें आपको 1 घंटे का ब्रेक तो कन्फर्म है मिलना। उसके बाद जाओ, खाना खाया, खाना खा के वापस आई, फिर से क्लासेस की, फिर थोड़ा बहुत फ्रेंड से बात किया, देन डायरेक्टली फ्रॉम स्कूल टू हॉस्टल। और बीच में अगर शाम को कुछ खाने का मन किया तो वेल एंड गुड, वरना मैं सीधा हॉस्टल आती थी, मैं सो जाती थी। फिर मम्मा पापा ही मुझे कॉल करते थे कि बेटा उठो, अभी इतना टाइम हो रहा है, रात का खाना नहीं खाना है क्या तुम्हें, एंड एवरीथिंग। फिर धीरे धीरे करके ये सेट हो गया। सो रिसेंटली अभी मेरा 3rd ईयर है, तो आई डोंट हैव वेरी मच ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन माई शोल्डर, बट स्टिल आई नीड टू हैव सब्जेक्ट्स। तो अभी का टाइम टेबल भी ऐसा है कि अभी तो रिसेंटली टाइम टेबल इस तरीके से कि 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12 क्लास है, फिर 1 to 2 ब्रेक, देन 3 to 4, 2 to 3 क्लास है, फिर 3 to 4 ब्रेक है, फिर 4 to 5 क्लास है। अभी तो ऐसा स्केड्यूल है मेरा। सो या दैट्स इट, ये मेरा रूटीन था। उठना, क्लास करना, वापस आना, और फिर पापा पहुँचते। सो क्लास करना, वापस आना, सो जाना, और थोड़ा बहुत पढ़ना, एज यूजुअल पढ़ना पड़ता है। ये होंगी ओके, फिक्स इट। So the next question is food in LPU. So you will be getting 2 options for that. First is कि आप मेस यूज़ कर सकते हो, सेकेंड है कि आप कैंटीन ले सकते हो, मतलब फॉर रात के लिए। वरना वैसे आपके पास ऑप्शंस है कि आप फूड कोर्ट से खा सकते हो दोपहर में, एज बिकॉज लड़कों के लिए तो ईजी है, वो बाहर जाके भी खा सकते हैं, बट हमारे लिए इसका फंडा दूसरा है। तो स्टार्टिंग में जब हम गए थे तो मतलब सबने घर पे बोल दिया था कि मेस लेने का ज़रूरत नहीं है, फूड कोर्ट या बाहर से खाना लेने देना, क्योंकि सपोज करो किसी दिन नहीं खाती है या फिर खाना अच्छा नहीं लगता इसको मेस का, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो जब मैं गई थी तो 2 दिन तो बहुत होता है खाना पता करने में कि आपको क्या खाना और क्या नहीं। तो जब वॉज अ शॉप, सब उनको आंटी की ही शॉप बोलते थे, तो वो मतलब उनका खाना मुझे अच्छा लगता था। सो फॉर द फर्स्ट 6 months मैंने उनका पूरा पैकेज ले लिया था, और उसमें ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग ब्रेकफास्ट और डिनर। लाइक इवनिंग ब्रेकफास्ट वॉज कॉम्प्लीमेंट्री इन दैट, तो ये सारा चीज़ होता था उसमें। तो बाद में फिर मुझे उनका खाना भी अच्छा नहीं लगता था, एज बिकॉज वो हर टाइम वही ब्लैक वाली दाल जो होती है वो बनाती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पंजाब में सिर्फ वही दाल बनती है, जब भी जाओ वही दाल मिले। तो आई वॉज लाइक कि अब नहीं खा सकती मैं। तो 6 months ही किया, उसके बाद मैंने फिर कहा कि मैं खुद से ही खाऊंगी। देन आफ्टर दैट आई वेंट फॉर ऑप्टिंग कैंटीन ओनली। और दोपहर के लिए तो फूड कोर्ट में तो मुझे जिस हिसाब से भी खाना होता था। तो वैसे फ़िलहाल अभी का सीन तो ये है कि एलपीयू में काफ़ी सारे फूड कोर्ट्स बंद हो गए हैं। अभी एलपीयू ज़्यादा फोकस मेस के खाने पे कर रही है, प्लस दे आर हैविंग देयर ओन, आई गेस कंस्ट्रक्शन चल रहा था, अब तक हो गया होगा पूरा, कुछ बड़ा कैफे आई गेस या बड़ा सा मेस जैसा सीन है उनका, वो बनवाने की सोच रहे हैं वो। तो आई गेस अब तक हो गया होगा कंस्ट्रक्शन, और जब मैं जाऊँ अगर गई तो होपफुली मैं देख पाऊँ कि क्या नया बना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फन टाइम और इन्जॉयमेंट के लिए मैं क्या करती थी। तो पहले तो मैं इतना थकी रहती थी, बट अगर आपके रूममेट्स अच्छे हों और अगर आपने अपने रूममेट से बॉन्डिंग बहुत अच्छी बना रखी हो गाइस, तो सीरियसली आप हर दिन एंजॉय कर सकते हो उनके साथ। तो सेकेंड ईयर के रूममेट्स, फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड आई थैंक टू हिम और द गॉड कि मुझे रूममेट्स बहुत अच्छे मिले इस बारी। लाइक आई हैव वन फ्रॉम वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग, एक हरियाणा से है, एक यूपी से ही है, लखनऊ जस्ट नेक्स्ट टू मी। तो बहुत ज़्यादा अच्छे, लाइक हम सब कुछ अच्छे से करते थे, एज बिकॉज एक फ्री का तो अभी फाइनल है, तो वो शायद मास्टर्स यहाँ से करे, उनका कुछ पता नहीं है, बट मेरे रूममेट्स बहुत अच्छे थे, लाइक वेरी सपोर्टिव, कुछ भी हो जाए हम साथ में करते थे। तो इन्जॉयमेंट के लिए आपको अपना ही कुछ खोजना पड़ेगा। अगर
आप लोगों से मिलने में या फिर उनके साथ सराउंड होने में थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में सबको होता है, वैसा मुझे भी हुआ था। सो आई वॉज लाइक ओनली इन माई लैपटॉप एंड फ़ोन, और मैं खुद में ही कुछ करती रहती थी। तो बट सेकेंड ईयर आई एन्जॉयड वेरी मच, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। लेट नाइट मैगी खाना, डिस्कशन करना, पार्टी इन द सेंस कि गॉसिप्स करना, गेम्स खेलना, ये वाली पार्टी, ठीक है। वो अगर आप शोर कर करके करोगे ना, तो अगले दिन वार्डन आ जाएगी आपके पास कि आप रात को इतना ज़्यादा शोर नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर लड़कियों को बाहर जाना है एलपीयू तो कैसे पॉसिबल है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है गाइस। तो जब मैं बहुत कम बाहर गई हूँ, 2 साल हो गए, मेरे को लगता है मैं मुश्किल से 12-13 बार बाहर गई होंगी। हाँ, क्योंकि बस नहीं चाहती है, मतलब इतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है जाना। तो उसके लिए ये है कि अगर आपको बाहर जाना है तो आपके पेरेंट्स की परमिशन स्टार्टिंग में ही, जब आप हॉस्टल में रहोगे तो ले ली जाएगी कि आपके बच्चे को अगर हॉस्टल के बाहर जाना है, स्पेशली फॉर फीमेल्स, ओके, कि इफ़ यू वांट टू लीव from the college to outside, like you want to go, your parents have to give the परमिशन कि हाँ फ्यूचर में अगर से कभी बाहर जाना होगा तो पहले वो रिटर्न में लेते हैं। तो उसके बाद अगर आप डे आउट में जा रहे हो, लाइक एक अगर 6 इवनिंग में 6 बजे का, लाइक 6 o'clock वॉज अ मैक्स टाइम, तो आपको 5 बजे तक आ जाना है कैंपस के अंदर, ठीक है। और हॉस्टल के टाइम से पहले जाके रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो अगर आप नाइट आउट पे जा रहे हो तो देन दे आर गोइंग टू कॉल योर पेरेंट्स फॉर द कंफर्मेशन कि आपकी बेटी बाहर जा रही है रात के लिए, सो आप भेजना चाहते हो ऐसा करके। सो डे आउट के लिए वो कॉल नहीं करते हैं, और रात में अगर आप रुक रहे हो बाहर, देन दे गोना कॉल कि आपकी बेटी बाहर जाना चाहती है तो क्या हम उसे भेज दें, एंड इफ पेरेंट एग्री देन वो आपको एक स्लिप देंगे, अगर नहीं तो आप एक नो, आपको अंदर ही रहना पड़ेगा। देन वो स्लिप देंगे, उस पर साइन करेंगे, वो स्लिप लेके आप मेन गेट जाओगे। मेन गेट पर स्लिप का वेरिफिकेशन होगा, फिर उस पर टाइम डाला जाएगा कि अगर आप 10:23 पे मॉर्निंग में निकल रहे हो तो उस पर 10:23 लिखा जाएगा, और शाम को अगर आप 5:57 पे अंदर आ रहे हो तो 5:57 लिखा जाएगा। तो एग्जैक्टली उसके बाद वो स्लिप आप वार्डन ऑफिस में जमा करोगे वापस। उसके बाद वार्डन डालेगी कि आपकी बेटी 6:10 पे हॉस्टल के अंदर आई है, क्योंकि वो डिजिटल कार्ड होता है ना टर्न्स टाइम पे, तो वो, और वैसे तो रात को ही मैसेजेस जाते हैं तो उतना इशू नहीं होता। तो फिर वो भेजा जाता है पेरेंट्स के बाद कि हाँ आपकी बेटी आ चुकी है, तो टेंशन लेने की बात। और आई गेस इतना काफ़ी है, बट मेरा एक्सपीरियंस एलपीयू में काफ़ी अच्छा है। लाइक आई एंजॉयड एवरीथिंग, हैविंग कंपनी और इतने सारे लोगों से मिलना। Like I'm very happy because I have no n number of friends. Like my friend group was this much in school, then slowly itna and I have this much of big friend group now. Some international, some national, and everything was is the part of my life now, and I'm very happy कि मेरी लाइफ इतने अच्छे से ग्रो कर रही है, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। और ऑनलाइन क्लासेस की डिटेल्स जो मेरा वीडियो देख रहे हो मेरे क्लासमेट्स को पता है, और अगर जो देख नहीं रहे हो ना तो मैं एक छोटा सा फटाफट से बता देती हूँ कि क्या सीन होगा उसमें। ऑनलाइन के लिए आपके पास एलपीयू टच एक एप्लीकेशन होगा, उस एप्लीकेशन में लिखा होगा कि आपकी क्लास लाइव पे चलेगी क्या या माई क्लास पे चलेगी। माई क्लास एक दूसरी चीज़ है जो आप यूएमएस पे लॉगिन करोगे, क्रोम पे जब जाके यूएमएस पे लॉगिन करोगे तब मिलेगी। और अगर वो लाइव पे लिखा हुआ है दैट मीन्स कि आपकी सारी लाइव भी एक एप्लीकेशन है गाइस, तो उस पर आपकी सारी पीपीटी, प्रेजेंटेशन और बाकी जो भी टीचर अपलोड करना चाहे वो लाइव पे होगा। और आपकी गूगल मीट की क्लास चलेगी जिसमें आपकी अटेंडेंस भी ली जाएगी, ऑटोमेटिकली सिस्टम रीड करेगा। आई गेस 3 to 4 टाइम्स होती है और वो ऑटोमेटिकली सिस्टम पे आ जाती है। या दैट्स इट। और बस आपको अपना स्केड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, अटेंडेंस देनी पड़ेगी। और आई गेस ये सेमेस्टर काफ़ी इजी होगा अटेंडेंस के मामले में, एज बिकॉज जिन बच्चों को अटेंडेंस नहीं मिलती थी या जो लेट जो बाहर रहते बेसिकली उनके साथ ये इशू बहुत होता है कि उन्हें अटेंडेंस पूरी नहीं मिल पाती है। तो उनके लिए ये प्लस पॉइंट है इस बारी कि आपको बस 9 बजे क्लास है, 9 बजे लॉग इन कर लो और बैठ जाओ आराम से क्लास करने। उनको रश नहीं होगा कि हम 5 मिनट लेट हो गए, क्योंकि लवली में ऐसा है कि अगर आप 5 मिनट, अभी तो ऑनलाइन है तो उन्होंने आपको टाइम दिया होगा कि 10 मिनट पे भी आ सकते हो, लेकिन अगर आप लवली में 9:03 पे पहुँचो और अटेंडेंस 9:02 पे पंच हो चुकी है तो वो 1 मिनट का जो गैप है ना वो आप फिल नहीं कर सकते हो। यू आर गोइंग टू मार्क एब्सोल्युटली। और अगर आपने किसी फ्रेंड को बताया है तो अगर कोई टीचर जो आपकी बात समझेगा
कि हाँ बच्चा आ रहा है, देन दे गोना गिव इट कि अच्छा ठीक है इट्स ओके, वरना दे आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू, जस्ट गोना बी एब्सेंट फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास। तो ये तो अच्छा है कि जिन्हें ऑनलाइन इस बार ये अटेंडेंस मेंटेन करनी है, बहुत ईजी है मेंटेन करने के लिए। बाकी सी और तो असाइनमेंट्स में कन्वर्ट हो गए इस बार, बेस्ट ऑफ 2 आउट ऑफ 3 होता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का कुछ आइडिया नहीं है अभी, और बाकी तो हमारे मार्क्स भी आ चुके हैं। सो आई गेस मैंने 6 to 7 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस ही डिस्कस किए होंगे, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। सो ऑल दोस्त who are gonna watch this video, I hope कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो, आपको समझ में आए, एंड आई हैव ट्राइड कि मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस दे दूँ। और अगर हुआ कभी इन फ्यूचर कि मुझे सिर्फ अपना एक्सपीरियंस देना होगा, सो आई एम श्योरली गोना हैव दैट वीडियो ऑन माई चैनल वेरी सून। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट सो डू सब्सक्राइब टू दैट बटन जो नीचे रेड वाला है ना, डू सब्सक्राइब, जस्ट क्लिक ऑन इट और आप डायरेक्टली सब्सक्राइब हो जाओगे। एंड डू प्रेस दैट बेल आइकन ऑल्सो, ओके, फॉर फ्यूचर अपडेट्स फ्रॉम माई चैनल, एंड गिव इट अ बिग फैट थम्स अप इफ यू लाइक इट। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ना, और कुछ नया कुछ और चाहते हो जो मैं बनाऊँ, सो प्लीज़ मुझे बताना। आई एम ईगरली वेटिंग कि कुछ नया बनाऊँ। या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, अंटिल वी मीट, बाय।